हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं शाजी प्रभाकरन। आज मैं आपके साथ लाइव हूँ और जो भी मुझे आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरा एक ही अपील है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस कोविड जो वायरस है, इससे हमें जीत हासिल करनी है और ये हम सब मिलकर ही इस पर जीत हासिल कर सकते हैं। और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव पीयूष जैन, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस लाइव सेशन के लिए उन्होंने ना आमंत्रित किया और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप इंडियन फुटबॉल के बारे में कुछ अपना व्यूज रखें। तो और आज मैं उस टॉपिक पे बारे में बात करूंगा जो द टॉपिक इज पोटेंशियल ऑफ फुटबॉल इन इंडिया, since my whole life is devoted to football, and this is the best topic I can bring in front of you. And I'm sure you will have many questions, because I would like to have more interaction rather than going a complete monologue from my end. It's really a pleasure for me to be here today, and I'm also my part of physical education profession, and it's really pleasure to be here. Let's start with the topic, the potential of football in India. देखिए, फुटबॉल दुनिया का सबसे नंबर वन स्पोर्ट है और इसमें 4 बिलियन लोगों से ज्यादा लोग जुड़े हैं फुटबॉल में। और इसे हम ब्यूटीफुल गेम कहते हैं क्योंकि ये ब्यूटीफुल है। और मैं आज जो भी हूँ लाइफ में, फुटबॉल की वजह से हूँ। और मैं इंडियन फुटबॉल को बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। लेकिन आज हमारे जो दशा है वो अभी बहुत लोग उससे नाखुश हैं। लेकिन हमें जरूरत है कि इस पे मेहनत करें, इस पे काम करें और इस पे लोगों को जोड़ें और बहुत कुछ करने को है। ये तभी हो पाएगा जब अगर हम सब के काम करें इस पर, क्योंकि अगर फुटबॉल टॉप पे पहुंचेगा तो इंडिया भी टॉप पे रहेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गेम है और सभी फुटबॉल को चाहते हैं। और इंडिया में भी बहुत प्रतिभाएं हैं। और अगर इंडिया की पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूं तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ही निश्चित हूं कि I'm very sure, I'm confident that when in 2030, 2040, football will be the sport which India will follow in a big way, because uh, right now the participation is growing in a big way, in a significant way, and this is the fastest growing sport in India right now, as far as participation goes. And the potential is huge. अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं, तभी भी हम देखते हैं कि 1950s हो या 60s हो, अर्ली 70s हो, हम डोमिनेट कर रहे थे। हमने एशियन गेम्स गोल्ड मेडल भी जीते हैं और एशियन चैंपियनशिप जीते हैं और बड़े बड़े कंट्रीज को भी हराया है। तो इसलिए हमें उस जो स्ट्रेंथ को देखें तो, और जो भी फुटबॉल से जुड़े हैं या फुटबॉल को के बारे में परख है, उनको ये जरूर पता है कि हमारी फुटबॉल बहुत स्ट्रॉन्ग 70s तक। लेकिन 80s 90s में हमने कोई डेवलपमेंट काम वैसा किया नहीं और हम पिछड़ गए। लेकिन अब ये जरूर कि हम आगे देखें और आगे अगर हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा, वी वर रैंक्ड 165 in the world a few years back. Now we are, we also break the barrier of 100 again. Our highest ranking was 94. We again, fell a bit down, but then we have climbed up. Now we are 108, and we will only go up, because
the kind of initiatives uh, India is taking in football is huge. It's not only at the federation level, not at the club level, but the government is also pushing uh, football in a, because I take this opportunity also to thank Mr. Kiran Rijuji, who is the current Minister for Youth Affairs and Sports. He's also very confident of potential of football in India, and thus history and the sports society of India is also funding football in a way which is encouraging, and and it is not only the funding part, but there are many more initiatives which are there, like hosting under 17 World Cup in 2017. It was not possible without the support and the contribution of the government, and also not only the central government, but also many states who have supported in a big way. And because of under World Cup in 2017, we have created a lot of infrastructure, 6 states in 6 cities, and multiple training venues. So which is India created a record in terms of stadium attendance and the whole hype on the event, which was the world could see that we are not less than any other country when it comes to the fans, and we have more than 200 million who follows football religiously, hardcore fans. तो हमारा वो सब कुछ है जो बाकी देशों में, बट हमें जरूरत ये है कि हम स्ट्रक्चर पे काम करें और हम कैपेसिटी पे काम करें, क्योंकि हम जो इंडिया है, इट्स लाइक a continent, is big, is complex, is diverse. It's not like a small country with few thousand people or few lakh people. We are 1.3 billion, and we since 90s, when India got opened its economy, and that's where economic benefits started coming to sports also. And since early 2000, the sports started getting investment, and it is getting professionalized. And it was the first sport in India to start a national league, which was in 1996, even before cricket. Yeah, so that fan following, that length of football, and was a huge support at that time itself. Though the Indian Premier League coming into place, into existence since 2008, has really encouraged all other sports to, because IPL has shown not only to Indians but also to the world that India is fanatic about sports. And the IPL property right now is one of the biggest properties in the world. And then why I'm mentioning IPL, because in football we started Indian Super League in 2014, which is huge initiative, and which has brought many of the World Cup stars, so prominent stars into football, and which has encouraged the fan following of Indian football since 2014. And you see the kind of partners getting in, the kind of sponsors getting in, kind of fan base getting, kind of media coverage coming in, all that is very encouraging. And we would be top of Asia in 10 years or 15 years time, because we will be able to find the right talent, because our clubs are getting stronger, and they would need bit of more support in building infrastructure. And if they build the infrastructure, we would be able to develop many good players, because right now if we see the economics of football is the second most popular sports in terms of earning. So many of the players even earn more than a crore. You know, in there are few players who earn more than crores. And there are many 500 to 600 players who earn more than 20 lakhs annually.
which is a huge money when we talk about India, and this only grow, and there are many foreign coaches get engaged and are able to bring the best experts to India, and that's how we are building the capacity of system and our structure. And federation also started grassroots initiative in a big way, which would ultimately grow big and will have to reach to panchayats, panchayat level, village level, every blocks and districts, and that's how we will engage more participation. So I can tell you, it is uh, football is at a very strong level right now, but what we need is we need to enlarge participation base, and our schools need to become an integral part of our football structure, which is right now in except few states, in most states it is not. How we can bring schools into football, and whereby those physical education teachers or those coaches school can add value to फुटबॉल, और वो भी फुटबॉल से वैल्यू प्राप्त करें, क्योंकि फुटबॉल में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं बहुत ज्यादा आने वाली है। देखो, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एक ऐसी चीज है जो फुटबॉल में बहुत बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है, और हर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है इंडिया में आज के दिन, और उनकी संख्या जो वो बढ़ते जाएंगे, तो वो स्पोर्ट्स स्टैटिस्टिशियन, स्पोर्ट्स डेटा specialist, or sports science. Sports science is going to be very big in Indian football forward, and it will create more opportunities, it will for employment opportunities, and we will be able to create that level of player who will at the end go and play in big clubs, and that is quite possible. That India will find a talent which would be equal to a thunder in cricket, and that is the day you will see every parent would want their kids to be part of football in India, and it can happen 5 years, 7 years, 10 years और 15 years down the line. हम देखेंगे कि हमारी इंडिया एक खिलाड़ी जो जाकर यूरोप में खेलेंगे, और मैनचेस्टर यूनाइटेड या बार्सिलोना या आर्सेनल, चेल्सी, ऐसे क्लबों में खेले, और उससे जो मिलेगी इंडिया, और हमारा जो सिस्टम है, जो परिवार का सोचना है, पढ़ना लिखना ही खाली सब कुछ होता है, खेलना बिल्कुल आखिर में, ऐसा बिल्कुल अब बदल रहा है। और ऐसा एक मकाम अगर हासिल कर पाए कि इंडिया से एक खिलाड़ी उस लेवल खेले, और उस दिन ही सब बदल जाएगा, और आप देखेंगे कि ये ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे इंडिया में प्रतिभाओं की कमी है, बस उस प्रतिभा को हम निकालें और उनको कैसे ट्रेनिंग दें और एनवायरनमेंट दें जिससे कि वो मोटिवेट हो, एनकरेज हो, और अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दे फुटबॉल में, और हमारा जो कल्चर है वो स्ट्रांग ही होगा, और आप देखेंगे ये स्ट्रांग ही हो रहा है। और सारे जो फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन से फुटबॉल में जुड़ रहे हैं, उन्होंने खुद को देखा होगा या अपने साथियों को देखा होगा कि वो उनका जो लेवल है वो फुटबॉल के प्रति जो रुचि है वो बढ़ा जा रहा है। वो इसलिए कि वो देख पा रहे हैं कि फुटबॉल एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, और उस पे काम करने का मौका मिल रहा है, और एक फ्यूचर है। तो और जहां तक हमें स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, वो जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हमारा स्ट्रक्चर है अभी भी पूरी तरह फर्म नहीं है, क्योंकि स्टेट्स में देखेंगे तो फुटबॉल अभी भी बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में। उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे स्टेट्स जो है इम्प्रूव करेंगे, उनको सपोर्ट की जरूरत है। आज के दिन क्या है कि मैं भी एक स्टेट का हूँ, दिल्ली का, तो मैं ये कहूंगा स्टेट्स में लोग ज्यादा ध्यान नहीं, स्टेट को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो बहुत कठिनाइयां हैं, क्योंकि देखो हमारे हैं वो यूरोप के जो फुटबॉल में नामदार हैं उनसे बड़े हैं, और हम अपने स्टेट ही मजबूत करें, देश मजबूत होगा, और वो जरूरत है। और हम मतलब ये देखेंगे
कि जरूर होगा। और दैट्स you are all who are listening to my talk, my view, think how you can get involved at the state level in your through your school or through your college or through your professional agencies wherever you are working, because football is one sport. It's create multiple opportunities and it will only grow big. And हमें देखो हमारे क्लब जो है, फुटबॉल ही एक ऐसा स्पोर्ट है, क्लब कल्चर है इंडिया में पहले से किसी और स्पोर्ट में आप ज्यादा देखेंगे। और यही एक सब स्ट्रेंथ है हमारे फुटबॉल का। तो इसी से कहता हूँ कि हमारी जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। और आज के दिन जो हमारा पोटेंशियल है उसके 5% लेवल काम कर रहे हैं और 5% लेवल दिख रहा है। तो अभी हमें 90% एरिया कवर करना है। That is a long way to go, but what is required of strengthening of our structure, having a strategy, because without the right strategy, without setting our goals, क्योंकि हमारे ने अभी तक वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया है और वही सबका लक्ष्य होता है कि अगर वर्ल्ड कप खेलेंगे तब तक लगेगा कि हम तो मतलब कमजोर हैं, ठीक है, हमें पोटेंशियल नहीं है। लोग जो ज्यादातर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे क्योंकि फुटबॉल बड़ा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। 200 कंट्रीज खेलती है, वो यूएन से भी बड़ा है। और जो ओलंपिक्स में भी इतने कंट्रीज नहीं होते, 207 कंट्रीज ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फुटबॉल में 211 कंट्रीज हैं और ज्यादातर कंट्रीज जो है कॉम्पिटिटिव हैं और उनका जो सेंचुरी से काम हो रहा है फुटबॉल में। वो जो प्रतिभाएं वहां दिखते हैं, वहां जो परिस्थिति है और इंडिया में जो परिस्थिति है और उसमें बहुत अभी डिफरेंस है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स देखें या यूथ डेवलपमेंट में देखें या एलिट प्लेयर डेवलपमेंट में देखें, और वहाँ काम बढ़ रहा है। लेकिन हमें और इसको तेज करना पड़ेगा, इस काम को, इस काम और बढ़ाना पड़ेगा और ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कैसे इसको कमर्शलाइज भी करें, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट जो है और फुटबॉल में जा रहा है। आप देखोगे कि जो आईएसएल है उसकी जो वैल्यू है वो 500 मिलियन या 8 बिलियन या 2 बिलियन यूएस डॉलर होगा। और किसी एक क्लब को अगर वैल्यू देखेंगे तो वो 100 मिलियन या 300 मिलियन किसी अभी देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो ग्रुप है, जो क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग में उनका उनके और भी क्लब हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, चाइना में भी है। तो उन्होंने इंडिया में एक क्लब पे किया है और वो उन्होंने उस क्लब पे अरबों इन्वेस्ट वो जब और उन्होंने वो वैसे लोग फुटबॉल पे जुड़ रहे हैं। और इंडियन फुटबॉल के जो सबसे बड़े सब प्रमोटर हैं या वो रिलायंस है और मुकेश जी के कंपनी, उनकी धर्मपत्नी अंबानी जुड़ी हुई है। तो जब ये इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन, richest family getting involved in football, and they are contributing, they are supporting, so we can realize that they won't touch anything without realizing, without having a thought or without the realization that this sport has no potential. Definitely, their realization is, the football has a huge potential, and that's how they got involved in football. And since 2010 they are investing football in a big way. Their plan is to invest more than 1,000 crore in Indian football, and they have already invested a huge sum into it. And the broadcasting part, you those who follow football, आपको दिखा होगा कि देखो ब्रॉडकास्टिंग बड़ा है फुटबॉल में और फॉलोअर्स बड़े हैं। जो पिछला डाटा है
व्यूअरशिप का आप देखेंगे कि 50 जंप हुई है सीजन से इस सीजन में। तो वो दर्शाता है कि देयर इज अ कंज्यूमर हु फॉलो देयर इज अ डिमांड। जो भी अगर बात करें या बात करें या स्पेनिश लीगा की बात करें, तो उनका भी जो ताकि वो अपनी वो बढ़ाए। तो इंडिया तरह से हर वो जो है वो इंडिया में है, और बस एक परफॉर्मेंस लेकर आना है जो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम उस जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है वो उसका काम जो है 2010 के बाद हुआ है फुटबॉल में इंडिया में। क्या था, हुए थे, कोई ऐसा होता था, कोई स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं होता था। अब 2010 के बाद पहली बार हमें एक टेक्निकल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ जो नेदरलैंड के निवासी है, वहां के बड़े टेक्नीशियन थे, इंडिया ने अपॉइंट किया था। उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, उसके बाद से धीरे धीरे काम शुरू हुआ है। हमारे जैसे आप टाटा देख लें, टाटा ने भी फुटबॉल बड़ा इन्वेस्ट किया। उन्होंने उनका जो जमशेदपुर है वो बहुत मतलब टाटा फुटबॉल एकेडमी 87 से चल रहा है, लेकिन उन्होंने क्लब पे भी इन्वेस्ट किया। देखिए जो बड़े से बड़े कंपनी, हीरो वो टाइटल स्पॉन्सर है, जेएसडब्ल्यू जुड़े हुए हैं, डीएचएल हो गया, फ्लिप हो गया, पहले प्यूमा थे, तो हर बड़ी कंपनी फुटबॉल से जुड़ी हुई है। और तो वो एक ये दर्शाता कि जो फुटबॉल की लोकप्रियता है और फुटबॉल का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। और जहां इस पोटेंशियल को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सोचना, वो करना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आई हैव शेयर्ड, वी हैव वी have a long term plan of complete strategy, how we can enlarge the parent base, 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे कैसे आगे आए, खेले फुटबॉल, उनके लिए अपॉर्चुनिटी से क्रिएट करें, उनके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म हो, हम कितने कोचेस हमारे में होने चाहिए। आज के दिन जो लाइसेंस कोचेस हैं वो 5 हैं, वो बिल्कुल इनसफिशिएंट है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन देखा जाए तो हमारा जो की संख्या है वो बहुत कम है, और ये संख्या ये लाखों में होनी चाहिए। तो अगर लाखों में होंगे तभी, अगर एक ये हम बोलते हैं द गुड टीचर्स और गुड कोच कैन ओनली प्रोड्यूस good players, and that's a fact. And the licensed coaches can only produce, can handle players and train players better. They can evaluate players better. They can create opportunities for better. So it's very important that we need to have a strategy how we enlarge the participation base at the base of the pyramid, grassroots, and then at the same time how we should have that required number of coaches at what level, from grassroots, youth, elite, professional level. So therefore in India we have different licenses, which is starting from D license going up to pro license. There are now India has got nearly 7 to 10 pro license coaches also. So the number have to grow big. We need minimum 100 pro licenses in next 3-4 years. क्योंकि अगर प्रो लाइसेंस कोचेस होंगे तो वो प्रोफेशनल टीम्स को हैंडल कर सकते हैं, और प्रोफेशनल टीम्स को वही हैंडल कर सकेंगे इस कामयाबी से उनके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, कॉम्पिटेंसी हो उस तरह की। ग्रास रूट से आगे बढ़ते हुए हमारे पास डेवलपमेंट का सिस्टम होना चाहिए। यूथ डेवलपमेंट में कि बहुत जो 12 साल के बच्चे हैं, 13 साल के बच्चे हैं, 18-19 साल तक से खेलें फुटबॉल, उनके लिए कॉम्पिटिशन्स क्या हो, उनके लिए एलिट प्रोग्राम क्या हो, उनके लिए अकेडमीज कितने हो, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने हो, से वो कैसे जुड़े। और हमारा यूथ कंपटीशन स्ट्रक्चर अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, बहुत कम कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने का मौका मिलता है। तो
how we can enlarge that. That is very important. Need to see that they end up playing, a range of 25 to 45 matches in a calendar year or in a season. Then only they can grow. Then only they can develop, and then only the coaches will have the opportunity to evaluate them. We need to build the structure, through a strategic plan, through a proper plan from the grassroots to the top. हमारे पास कम से कम करोड़ों में बच्चे खेलें फुटबॉल, और वो जो पिरामिड है वो तो जब अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम, हमारा जो पीक, जो टॉप ऑफ द पिरामिड है, जो प्रो या एलीट लेवल है, वो जाके स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने ज्यादा खिलाड़ी खेलेंगे, ये जरूरी नहीं है कि जब हम 5 करोड़ खेल रहे हैं तो 5 करोड़ ही जाके प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं, नहीं। जब 5 करोड़ खेल रहे हैं तो 50,000 या 5,000 ही खिलाड़ी, वो दैट्स सभी खिलाड़ी नहीं बनते उस लेवल, क्योंकि सभी में वैसी काबिलियत या सभी का एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता, सबको अपॉर्चुनिटीज कभी कभी इस टाइम पे नहीं मिलता। तो हमें जरूरत है कि हम इस ढांचे को स्ट्रॉन्ग करें, और जो हमारे क्लब्स हैं इसको भी और मजबूत अपॉर्चुनिटीज दें, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी क्या है, 30 या 40 क्लब जो है बड़े स्ट्रॉन्ग वाले हैं, जो प्लेयर्स को रिक्रूट करते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स को भी ट्रेनिंग करते हैं या अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जो कुछ हैं एकेडमी, लेकिन अभी एकेडमीज की संख्या बहुत कम है। तो इस सब को बढ़ाने की, और ये सब एक स्ट्रेटेजिक वे में होगी, और ये इसमें फेडरेशन, एसोसिएशन, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, क्लब, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि देखो कि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, फेडरेशन अपनी तरीके से काम कर रही है, क्लब्स अपने तरीके से कर रहे हैं, स्टेट एसोसिएशन अपनी तरीके से कर, फिर कोई कॉर्पोरेट है वो अपनी तरीके से कर रहा है, तो उससे हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें जरूरत है कि एवरीवन हैज टू टुगेदर, फॉर्म ए टीम। इट इज अ टीम वर्क। We need to have a shared goal, shared vision. Everybody knows कि हमारा विजन क्या है, कि कब वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, 2036, 2034 में खेलना चाहते हैं, 2038 में खेलना चाहते हैं, 42 में खेलना चाहते हैं, 46 में खेलना चाहते हैं। लेकिन हम वर्ल्ड कप, तो जो केंद्र विजन है या जो टारगेट है, वो एकदम सबको पता होना चाहिए। उस टारगेट में पहुंचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है, और वो उस पे सब सहयोग की जरूरत है। और जो रिसोर्स पूलिंग की, जो हम ये कहते हैं अरे पैसा नहीं है इंडिया में, पैसे की कमी, बस ये है कि हम उस पैसे को कैसे एक में डालें, क्योंकि अब हर चीजें हो रही है, लेकिन 1000 डायरेक्शन में होगी तो वो पैसे का भी मिलन नहीं होगा। जब का मिलन नहीं होगा एक जगह पे, एक बंदू पे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस जो रिसोर्सेस है बहुत जगह वेस्ट होता है, क्योंकि हम करते हैं स्पोर्ट्स में एक 100 मंजिला बिल्डिंग बना लेते हैं, मतलब उतना खर्चा होता है, और वो बिल्डिंग गिर जाता है, हमें भी नहीं है। फिर हम 100 करोड़ लगाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि हाँ 100 मंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, और वो गिर जाता है, किसी को नहीं पता चलता। तो वो जो कहने का मतलब है कि हम बहुत ज्यादा जो है वेस्ट होता है, और वो किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर में बहुत जरूरी है, जिम्मेवार लोगों की ले लेते हैं, काम करने में थोड़ा पीछे रहते हैं, और नहीं समझते, उनके पास पैशन नहीं होता, जुनून नहीं है, कि हमें कुछ करना है, वो लोगों को जोड़ नहीं, तो बहुत लोग जो है वो फुटबॉल से दूर हो जाते हैं। हमारी जरूरत ये होनी, कैसे फुटबॉल में लोगों को जोड़े और लोग जुड़े, विदाउट टीम वर्क नथिंग कैन हैपन, बिकॉज़ फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट, एंड इन एनी स्पोर्ट इट इज अ टीम वर्क, एंड जो टीम है वो भी उनकी जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है इज ऑल अबाउट साइंस राइट नाउ। जितनी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बढ़ गया कि आज के एक प्लेयर की ट्रेनिंग हुआ या
फॉर्मेशन एनालिसिस हुआ, मैच एनालिसिस हुआ या इंडिविजुअल एनालिसिस हुआ, सभी टेक्नोलॉजी रिंग्ड है। अगर आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं, टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं चाहते या करना नहीं जानते या उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, तो हम उतना ही हमारे लिए कठिनाई होगी कि हम उस गैप को कवर कर सके, क्योंकि सभी कंट्रीज मेहनत कर रही है और कोई पीछे नहीं चाहता। और हमारी जो स्ट्रेंथ है कि हम हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम ऐसा प्लेयर निकाल ही देंगे और प्लेयर निकल ही जाएगा, तो दुनिया फिर हम मतलब वी वोंट बी behind anyone. So that's an advantage we have, this huge population number, and that is the confidence I have. We need to take football to every corner, every village, every panchayat, and that can happen through a proper structure, proper planning, and proper teamwork. And that is the work we need to do. And हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल में ग्राउंड्स हैं, लेकिन देखेंगे कि 80% या 80% स्कूल्स में फुटबॉल ग्राउंड्स नहीं है, क्योंकि जो पुराने स्कूल्स थे उन क्राइटेरिया थी वो अलग थे कि उनको बड़ा दिया जाता था, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, या किसी को 100 एकड़ भी मिल जाता था। अब तो 2-2 एकड़ में स्कूल बनते हैं या 1 एकड़ में स्कूल बनता है, तो वहां तो स्पोर्ट्स जो है वो आखिर में आता है। तो हम अगर बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अगर स्कूल में स्पोर्ट्स को दूर रखेंगे, तो मेरे लिए कठिनाइयां ज्यादा बढ़ेगी। तो वो स्पोर्ट्स को ही खाली हिट नहीं करेगा, हमारे बेसिक प्रोडक्टिविटी में हिट करेगा, हमारे देश के इकोनॉमी को हिट करेगा। अगर हम एक फिट सिटीजन नहीं दे सकते, फिट सिटीजन नहीं बनाते, अगर उनका एक्सपोजर नहीं है, अगर बच्चे एक्सपोज नहीं है किसी भी से, तो वो जब एडल्ट हो जाते हैं तो उनको और दिक्कतें आती है। तो ये नहीं स्कूल्स में फैसिलिटी, स्कूल्स में स्पोर्ट फुटबॉल का है कि आप खिलाड़ी पैदा करो, नहीं। स्कूल में होना चाहिए कि सभी जो बच्चे हैं उनको मिलने का, और वो एकेडमीज में जाएं जो अच्छी तरह संचालित हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, वो टैलेंटेड बच्चे वहां पे जाएं, वहां पे ट्रेन। और स्कूलों में कभी हम खाली सेलेक्टेड 20 बच्चों को ही सेलेक्ट करके ये दिखा देते हैं कि अच्छा ये बहुत बड़ा हम दिया कि हम ट्रॉफी ले आए, लेकिन हम ये सोचते कि वहां पे 99% जो बच्चे हैं वो फुटबॉल से उनका कोई मतलब लेना ही नहीं है, क्योंकि हमने वैसा किया ही नहीं, हमने जोड़ा ही नहीं उनको। और हम जब जोड़ेंगे नहीं और जब इंकरेज नहीं करेंगे, तो आखिर में जाके वो वहां भी बहुत सारे टैलेंट जो हैं वो छुपे रहते हैं, वो दिखते नहीं है। तो इसलिए स्कूल में जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, सभी बच्चे को एक ही तरह पढ़ाया जाता है, वो साइंस पढ़ते हैं, सभी बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है, उसमें कोई होशियार बहुत ही टैलेंटेड होता है तो वो टॉप स्कोर करता है। तो वैसे खिलाड़ियों में भी वैसे ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को नहीं वैसी जो फोकस है वो नहीं है, क्योंकि रेशियो जो है 1:1000 है या 1:2000 है, कहीं 1:1000 है, कि एक टीचर है या एक को इतने सारे बच्चे हैं, कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जरूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेशन है, इसको भी सभी हम सबको कि सही लोगों को ज्ञान दें, सही जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको बता, जो प्रिंसिपल है उनको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि खाली खिलाड़ी पैदा करना, उनके स्वास्थ्य, उनका जो वेलबींग है इज इम्पैक्टेड द स्पोर्ट्स। ये नहीं कि हम स्पोर्ट्स सभी करें, जब डॉक्टर बोले कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपको डायबिटीज हो गया, तब तक हम बहुत आगे निकल जाते हैं और बहुत मुश्किल हुए। तो मैं थोड़ा हार्ड से बोल रहा था, क्योंकि हर स्पोर्ट्स स्कूल से इम्पैक्ट होता है, और जितने ज्यादा बच्चे खेलेंगे उतना ज्यादा किसी स्पोर्ट्स को उसका फायदा होगा। तो हमें भी जरूरत
जो स्कूल से जुड़े हुए हैं इसको सही से प्रमोट करें और उससे क्या कि हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और कोई देखो अच्छा से अच्छा टैलेंट मिल जाए, अगर हम वहां सेलेक्ट तो दिक्कत होगी। ठीक है, स्कूल टीम को पार्टिसिपेट करना वहां तो कम ही बच्चे जा सकते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि सारे सेक्शन के बच्चे, सारे एज ग्रुप के बच्चे खेले और उनको मौका दें और वो जरूरी है। तो यू नो मैं फिर से कहूंगा कि हम डेफिनेटली एशिया में टॉप पहुंचेंगे दोबारा और हम उस लेवल के खिलाड़ी पैदा करेंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे और देश के लिए बहुत सारी ट्रॉफीज मेडल के आएंगे और पक्का फुटबॉल में होगा ही। और आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई devoted my life, last 25 years working in the field. I can confidently say this will happen. And there are many people who are put here. It's not कि मैं ही खाली अपने आप को डिवोट किया हुआ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत लोग हैं जो दिखते नहीं है, इतने छुप बहुत मतलब छुप के काम करते हैं जिनके बारे में नहीं पता और मेरे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं ऐसे लोगों से मिलने के लिए। तो अगर कोई भी क्लब चला रहा है, वो अपने पैसे लगा रहा है, अपने मेहनत की कमाई लगा है, तो बहुत ऐसे हजारों लोग हैं जो फुटबॉल को अपना सब कुछ दे रखे हैं। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट एनकरेज करने की जरूरत है और ऐसे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए और तभी हम फुटबॉल को बड़ा एकदम कर सकते हैं और ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो देखो अभी हम विमेन्स फुटबॉल को पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि विमेन्स फुटबॉल की जो पोटेंशियल इंडिया में वो भी बहुत है और आपको पता होगा कि हम इस साल अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप फीफा होना था, लेकिन कोविड के वजह से ये अब हो गया, अब अगले साल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है विमेन्स फुटबॉल। हमारे जो पोटेंशियल है विमेन्स, हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो भी बहुत टैलेंट और आपको पता होगा एक प्लेयर है जो इंडिया टीम की बाला देवी, वो अब में खेलती है तो रेंजर्स क्लब में और स्कॉटलैंड में, तो वो उनका इसी साल गई है और वैसे बहुत सारे मौके मिलेंगे हमारे लड़कियों को भी, हमारे महिलाओं को भी। तो हमें ये जरूरत है कि जब हम फुटबॉल की बात करें तो खाली we should not be focusing only towards the boys. We have to equally promote girls. We have to encourage women into football, and not only as officials, as referees, as players, as administrators also, because it's very important. अगर हम महिलाओं को नहीं देंगे, अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तो हम 50% लेवल लोगों को मौका दे रहे हैं और उससे क्या है कि हम किसी डेवलप नहीं कर सकते। तो क्योंकि महिलाएं जो है वो अभिन्न अंग है हर हमारे लाइफ का, सभी के लाइफ के लिए और हमारे और उनको आगे लाना पड़ेगा हमें और इसमें मेल्स जो है वो स्टेप लेना चाहिए, उनको ही एज करना चाहिए और एक इंक्लूसिव होना चाहिए क्योंकि इंक्लूसिविटी में जरूरी है कि महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा भाग लें, उनको प्रोत्साहन दें और जो एबिलिटी है कि हमारे इंडिया में जो ओलंपिक्स रियो में 2 ही मेडल मिले और महिलाओं को मिले और वैसे भी फुटबॉल में भी इतनी सारी खिलाड़ियां हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा और हमें उनको मौका ज्यादा से ज्यादा देना और वो भी चाहते हैं कि वो खिलाड़ी बने और फुटबॉल में आज के दिन इंडिया इंडियन विमेंस लीग भी होता है जो टॉप है और स्टेट में भी बहुत सारे जगह लीग होते हैं, यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, लेकिन इस सब नए तरीके से पड़ेगा ताकि ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये बढ़े क्योंकि अभी क्या है, हम जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर टोटल 5% लेवल पे फुटबॉल में काम कर रहे हैं तो महिलाओं के स्तर पे हम 1% लेवल पे काम कर रहे हैं, तो 99% तो उसको हमें सोचना पड़ेगा कि उनको कैसे जोड़े
स्कूलों में ये नहीं होना चाहिए कि अरे खाली लड़के ही फुटबॉल खेले, लड़कियां भी चाहती हैं फुटबॉल खेले, और वो भी उनमें भी काबिलियत है, उनमें भी जोश है, उनको, लेकिन हमें प्रोत्साहन और वो जरूरी है। तो आखिर में क्योंकि क्वेश्चंस आपके जो भी होंगे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि टीम सिलेक्शंस जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते। ये बहुत जगह ये इशू है, लेकिन मैं जहाँ इंडियन टीम की बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद इंडियन टीम का, नेशनल टीम का डायरेक्टर चुका हूँ 5 साल, और एक भी ऐसा खिलाड़ी टीम में जो किसी सिफारिश से आया, कोई भी नहीं, एक भी मेरे टाइम में नहीं आया। और वैसा भी नहीं है, ये लगता है, क्योंकि बहुत सारे चीजें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी कमियां हैं, तो इस वजह से सब चीजें नहीं पता रहता। लेकिन बॉल में जहां तक बात है, एट नेशनल लेवल, वहां ये सिफारिश या बल्लेबाजी नहीं चलती है, और बिल्कुल जो है वो ही सही लगता है, और किसमें कोई ऑफिशियल का दखल अंदाज होता ही नहीं है। जो अगर क्योंकि मैं 4-5 नेशनल कोच के साथ काम कर, जो कुछ फॉरेनर्स भी थे, कुछ इंडियंस भी थे, और मेरा ही मतलब डायरेक्ट उनसे लिंक होता था टीम के बारे में सब कुछ, तो वो जो लिस्ट देते थे वो ही पक्का होता था। तो वो जो भी कोच होता है, जो प्रोफेशनल कोच होता है, कभी भी वो उनकी चॉइस हो सकती है, क्योंकि उनका अपना गेम प्लान, उस गेम प्लान में जो फिट होता है उस तरह के प्लेयर लेंगे, और उनको वो फ्रीडम रहता है, और वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि वो नहीं आएंगे तो वो इसलिए हट जाता है, तो हटा जाता है। तो इसलिए वो धांधली लेकिन बहुत जगह होती है, जो निचले स्तर पर, निचले स्तर पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एज फ्रॉड्स बहुत ज्यादा है, कि सर्टिफिकेट आप 20 साल के हो, लेकिन 15 साल के सर्टिफिकेट में अंडर 14 खेल जाते हो, 16 खेल जाते हो, तो उसमें आपकी मिली भगत, और इसको खत्म करना है। और वो जब तक खत्म नहीं हुआ, तो क्या होता है कि अगर एक लड़का टीम में खेल जाता है, तो वो पूरे टीम को पता है, अगर वो 12 साल का भी बच्चा है, उसको भी पता है ये कि तो गलत खिलाड़ी आ गया इसमें, लेकिन वो बोल नहीं पाता। लेकिन उससे क्या होता है कि उससे जो बहुत सारी खिलाड़ी जो असली में खिलाड़ी हैं, वो बोलते हैं यार हम क्यों मेहनत करें, हमें सिलेक्शन होगा नहीं। तो वो बहुत सारे ऐसे लेवल पे गलत सिलेक्शंस होते हैं, उसमें तो मैं निश्चित पे एक्सपीरियंस किया है इस बात को। लेकिन ये कोशिश रहती है कि जो ऐसा कर रहा हो उनको में नहीं रहना चाहिए, और वो उनको तो मतलब उनको स्पोर्ट से प्यार नहीं है, तो और किसी चीज से प्यार है, तो वैसे लोगों की हमें ही नहीं है। और ये एक सिस्टम का अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर चाहिए, कि ये कैसे इसको दूर कर सके, कैसे इसको यू नो कंट्रोल कर सके, कैसे ट्रांसपेरेंट हो हर चीजें, कि जो एक डाउट भी ना रहे किसी के दिमाग में। और ये स्टेट एसोसिएशंस की जहां तक बात है, देखो एसोसिएशंस में क्या है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं, उनके पास फंडिंग नहीं है, उनके पास ढांचा नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनकी कोई भी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा, उनको कोई हाथ पकड़ के नहीं चला रहा। ये जैसे स्टेट एसोसिएशन की स्थिति वैसी है कि उनको बस छोड़ दिया है जंगलों में, कि आप अपने भरोसे देखो। कोई भी स्टेट एसोसिएशन हो, कोई एसोसिएशन हो, वो उनको की जरूरत होती है, उनको फंडिंग की जरूरत होती है, और उनको उनको कैपेसिटी भी डेवलप कराना पड़ता है, और एक स्ट्रक्चर के द्वारा। तो वो आज के दिन में कमी है, क्योंकि हम पूरी तरह हर स्टेट एसोसिएशन को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टेट एसोसिएशन चलाता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, कहाँ क्या गैप्स है, कहाँ इश्यूज हैं, और क्या परसेप्शन भी बन जाता है, क्योंकि आसान नहीं है। क्योंकि देखो आप स्टेट एसोसिएशन
ये नहीं है कि आपको एक बैंक अकाउंट मिल गया है, आपको एक एटीएम कार्ड दे दिया है, आपको फ्री में चेक दे दिया है और आपके खाते में करोड़ों रुपए है। नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, कोई भी 1 रुपया देने से पहले आपको बहुत बहुत टाइम निकालना पड़ता है किसी से 1 पैसे लेने के लिए, और वो आसान नहीं है। तो आप इसलिए इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो हमें खुद इस सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर आओ, सिस्टम को फिर चेंज करो, कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि बाहर से सब कुछ अलग लगता है। बाहर से वो सब क्या है, वो परसेप्शन है, और बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सच है, बहुत सारी चीजें सच नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम बाहर बैठे क्रिटिसाइज करें नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि अच्छा हो, तो क्यों ना हम अपना टाइम लगाएं उस पे। मैंने तो वैसे ही किया, क्योंकि इसमें ये नहीं कि वहां पे कोई सोना रखा हुआ है या डायमंड रखा हुआ है उसके लिए उसके अंदर आप घुस गए। ये इसलिए घुसे हैं कि चीजों को सही करने के लिए, और ये आसान नहीं है। नो, इट्स अ डेली फाइट, इट्स अ गर्ल, and you to work with different mindset of people. It is easy. You have to remain positive, you have to have all patience, you have to know how to deal with people, and to constructively work, and take tough actions also, take tough measures also. So it's easy, it's not easy. From outside everything looks मतलब आंकी डोरी की ठीक है, it's not that the situation is. हमें जरूरत है कि अच्छे से अच्छा लोग अंदर आए और चीजों को चेंज करें, सिस्टम को अच्छा बनाए, तभी अच्छे से अच्छे खिलाड़ी आएंगे। ये कोई दोहराए नहीं है। और कुछ क्वेश्चन आया कि देखो, हम विलेज फुटबॉल की बात करें, क्योंकि देखो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एसोसिएशन, पंचायत लेवल पे या विलेज लेवल पे अभी तक स्ट्रक्चर नहीं है। और देखिए, जो भाई हैं विलेज में भी बहुत ज्यादा, अगर हम उनको मौका नहीं देंगे तो वो दिखेंगे नहीं। तो ये जरूरी है कि हम विलेज लेवल तक, पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक ढांचा बने, ताकि जो भी फुटबॉल खेलने की सोच रहा है या फुटबॉल से प्यार है, वो कभी वंचित ना रहे। अगर उनमें काबिलियत, पाथवे है कि वो वहां से उठकर आप नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल तक पहुंचे, तो वो ढांचा बनना जरूरी है। हम सब यही चाहते हैं कि ज्यादातर ये हो जाता है कि ठीक, अरे हम क्यों विलेज में जाके मेहनत करें, वहां तो ना हमें कोई पूछेगा, ना कोई हमारा ना कोई अखबार, ना पैसे हैं, तो ये सब सोचते हैं। तो वहां पे बहुत लोग नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे कठिनाई ज्यादा है, मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज है, अगर आप विलेज में काम करें, मैंने तो काम कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि वहां जो सहयोग मिलता है वो और कहीं नहीं। नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल जो बढ़ रहा है आज के दिन, वो देखेंगे तो वो बढ़ रहा है क्योंकि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, वहां पे वो स्ट्रक्चर है, हर गांव में स्ट्रक्चर है कि देखो एक क्लब है, लोकल क्लब है, कम्युनिटी लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है, लोग एकजुट होकर काम करते हैं, सबको बढ़ावा देते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। ये नहीं कि वहां पे लाखों रुपए मिल रहा है, वहां पे सबसे कम पैसे है, मतलब वहां पे कोई कंपनीज है, कुछ नहीं है। लोग अगर 100 रुपए का है तो वो कहीं 5 रुपए दे देते हैं फुटबॉल के लिए। तो वो ये सोच के कि देखो हमारा बच्चा जो है फुटबॉल में खेलेगा तो कुछ करेगा जिंदगी में, और हमें सपोर्ट की। तो जो लाखों करोड़पति हैं वो नहीं देते, लेकिन जो सबसे निचले भाग में है, जो इकोनॉमी वीकर है, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये इसको ये इससे हमें क्या प्रेरित होना चाहिए, वी शुड मोटिवेटेड, दोज हु हैव, दे शुड मोर, दैट्स नॉट
maybe going forward it will happen. Yeah. जैसे मीनाक्षी जी भी हमारे इस वार्तालाप को सुन रहे हैं, जो मीनाक्षी पाहुजा जी हैं, बहुत अक्लेम्ड स्विमर हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बनाया है, वो जुड़ी हुई हैं दिल्ली फुटबॉल में। उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं उनको फिर से ही कहूंगा कि उनको जितना हम जोड़ना चाहते थे उतना अभी तक जोड़ नहीं पाए, लेकिन डेफिनेटली we will have to together engage more, and how we can work with more colleges, क्योंकि में फुटबॉल कैसे बढ़े। और हमने दिल्ली में ये पहली बार अभी शुरुआत की थी, बस एक फाइनल मैच रह गया कोविड की वजह से, इंटर कॉलेज दिल्ली स्टेट का कराया, तो हम महिलाओं में भी कराना है, तो हर स्टेट में वैसा होना चाहिए। तो बस आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, डेफिनेटली I'm here to answer all that, don't mind, ask any number of questions on any aspect, don't hold your I love that, आप पूछते रहिए, क्योंकि मेरे जो स्क्रीन पे जो होता है मैं उसी बेस पे आपको आंसर देता रहूंगा। और आप जो एक सजेशन आया है, जो सीबीएसई स्कूल हैं वो डायरेक्ट लिंक होना चाहिए एसोसिएशन से, देखो इसमें यही कहूंगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा रोल होता है, सीबीएसई का बड़ा रोल होता है, क्योंकि आज हम स्कूलों को अपने स्ट्रक्चर से नहीं जोड़ पाए, और वो स्कूल्स जो है उनका स्ट्रक्चर जो है एकदम अलग ही चला हुआ है। तो वो जब अलग चलता है तो उनके जो टैलेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत बार वो स्ट्रक्चर में नहीं पाते, और वो उनको एक्सपीरियंसेस सही नहीं हो पाते। तो इसलिए स्कूल्स को हमारे स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर, फुटबॉल के स्ट्रक्चर से जोड़ना जरूरी है। तो इसलिए मैं अपने दिल्ली में कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ, उनको कैसे इस बारे में, क्योंकि क्या है कि ये सब चीजें पिछले 70 सालों में हुआ ही है, क्योंकि स्पोर्ट्स प्रायोरिटी नहीं है, और एजुकेशन भी बिल्कुल मतलब है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स का बोलते हैं कि स्पोर्ट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, बट ये सब किताब में है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। वो पॉलिसी में क्या है कि 90 हफ्ते में बच्चा खेले, और उसमें भी ये भी बताया गया है कि कौन खिलाए, कैसे खिलाए, और वो बच्चा अगर कोई टैलेंटेड हो तो किस सिस्टम में जाए। तो मतलब बहुत सारी वीकनेसेस हैं वहां पे। तो ये जरूरी है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो स्पोर्ट्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठे, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट इज आल्सो एजुकेशन, मतलब ये नहीं कि जो एकेडमिक्स में जो प्रोफेसर हैं वो ही खाली एक्सपर्ट है, एजुकेशन में, ये गलत सोच है हमारी। अगर स्पोर्ट्स को बोल देते हैं कि इंटीग्रल पार्ट है, फुटबॉल को बोल देते हैं इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन, लेकिन वाक्य जो असलियत है वो 1% भी नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, उनको स्कूलों में स्पोर्ट्स के अलावा बाकी सब काम कराते हैं। ये मैं जब भी स्कूलों में जाता हूँ, प्रिंसिपल से मिलता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, चेयरमैन है जो करता धरता है स्कूल के, कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से बोलूं। लेकिन क्या है कि देखो, ये आप एक स्कूल को टैकल करेंगे तो ये 1000 साल लग जाएगा। तो ये सिस्टमिक होना चाहिए, ये पॉलिसी होना चाहिए। तो इसमें क्या है, विजनरी लोगों की जरूरत है, और वो स्पोर्ट्स से नहीं होगा, ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सोशल विमेन डिपार्टमेंट, सभी को एक साथ तब जाके असलियत पता चलेगा कि व्हाट स्पोर्ट्स कैन डू टू द सोसाइटी, चिल्ड्रन, टू द एजुकेशन ओवरऑल। देखिए, आप बच्चों से जो भी आपको पता होगा, जो बच्चा एक सेकंड में आप बोल दे कि चलो ग्राउंड में, तो दे ऑल गेट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, व्हिच इज
you know, huge. Not him you will see in a classroom situation. Academics are focused. So therefore, we have to see how sports can become a platform for learning. So that is what we have to think. That's unfortunately our education system. Also is not. Is backward, and also our professional, those physical educationists, also those professional colleges, universities, see how they can change the curriculum itself, bring to the level what we are. It's not same routine, PT. Is the time is long gone. We have to think in a way whereby children can relate to us. It's not only PT is physical education. There is much more to it, and how we can train, so that they become leaders in our system to influence change, and that's how we will better outcome in sports. उसमें मतलब देखो यही प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, तभी हम कर पाएंगे। हम चीजों को चेंज करेंगे टाइम से, और टाइम के आधार पर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को एक स्टैटिक सिचुएशन में रखा हुआ है। लेकिन जो बच्चे हैं वो जो है देखो बहुत चेंजेस है। आज जो बच्चे हैं उनको सब है, उनके टिप्स में है, उनको उनके पास स्मार्टफोन है, उनके पास सब पता है कि दुनिया में क्या है। तो therefore we have to better prepared. If we face to deliver something, we should know more than the subject. And the subject also to be known, to be delivered in a way as per the education of the child, because the child knows more now. So how we can beat the in that area, and that's how we can strengthen. तो इसलिए क्या होता है कि स्पोर्ट्स को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को अभी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि लोग देखते हैं अरे स्पोर्ट्स तो सबसे घटिया हुआ, seen as not in a positive way. That is what we need to work. So that can when we need to constantly reinvent, innovate ourselves, add more energy into the system. We need to rebrand things, present better, communicate better. Yeah, we should sound professional. We should deal professionally. There are so many aspects. So sports, that's how not football. Every sport in India in that level, yeah, and how we can change that, and that is because the government is really focusing a lot. Now the minister yesterday only given a statement that in 2028 Olympics, India top 10. That's the target he is working with. So therefore, those children who already a 10-year-old, they must get the best now, so that 10-year-old, 15-year-old, so that in 28 they get the maximum medals for us. And वो अभी स्कूल तो और लाइसेंस कर रहे हैं। हमारा दिल्ली में यही कोशिश है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करें, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको कंपलसरी करें कि जो भी फुटबॉल को डील कर रहा है स्कूलों में, उनके मिनिमम डी लाइसेंस हो। अगर वो तो टीम को डील कर रहा है जो बड़े बच्चे हैं, उनमें कम सी लाइसेंस हो। अगर ऐसा कुछ हो जाए, क्या होगा कि जो प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो फुटबॉल में बहुत ज्यादा होने वाली है। क्योंकि देखिए क्योंकि मेरे पास रोज 10 मेल्स आते हैं जो कोई आईटी में है, कोई बैंक में है, कोई फाइनेंस कंपनी में है, या कोई टेक्नोलॉजी कंपनी में है, या कोई में है कि हम कैसे स्पोर्ट्स में आए। हम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स मार्केटिंग करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पीआर करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे पास रोज 10 आते हैं मैसेज कि आप हमें गाइड करें। तो
those from physical education background, they have an advantage. So, but we need to really build ourselves in a way so that we have that competency to get the best job in the market. Or private sector, जो professional clubs है, pay well, better than the schools or colleges or university salaries. There, one will not have a permanent job. That's the risk you have to take. Yeah, and that is what we need. Yes. सी देखिए, जो लॉकडाउन का तो देखो, अभी तो लॉकडाउन हटे, लेकिन हटने से स्पोर्ट्स शुरू हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये तभी, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अभी तक कोई एक ऐसा एक्सपर्ट नहीं है इस दुनिया में जो बता दे कि ये वायरस कब खत्म। और जब ये वायरस जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक कोई भी अपने बच्चे को फील्ड में क्यों छोड़ेगा? रिस्क इज ह्यूज अनलेस स्कूल starts normal operations, where schools back to their normal routine, then only we can see, children on the field. So, right now it is a challenge for, everyone, those who are aspiring to be a sportsman. जो आज ही मैंने अपना एक interview दिया था कल, तो उसमें बताया जो जो established sportsman है उनके लिए ठीक है, वो mentally उनको challenges deal करना आता है। लेकिन जो अपकमिंग है, जो लग रहा है कि देखो हम अभी ब्रेक डाले, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया आज के दिन, क्योंकि वो ग्राउंड में नहीं जाएंगे तो अपने एनर्जी पे वो करेंगे। और देखो, आप कितना फिटनेस कर लोगे? फिटनेस, at home and on the field is a two different thing, because you are training something in isolation and you are not, in a game situation or real situation. You are not, challenged. Therefore, the fitness component, the factors will go down tremendously, and energy what the young sportsman has got is tremendous. And how they will take out that, और उनका appetite जो है तो डिसबैलेंस हो जाएगा, बॉडी का डिसबैलेंस होना है, क्योंकि आपका इंटेक बढ़ जाएगा, आउटकम कैलोरी इनबैलेंस होगा, तो आपके वेट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, तो फिटनेस में प्रॉब्लम होगा, मेंटली प्रॉब्लम होगा, तो बहुत सारे इश्यूज हैं अभी। हम अभी तक हमारा वैसा ढांचा नहीं है कि हम देखो साइकोलॉजिस्ट हैं या उस लेवल के साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास कि वो मेंटली सबको स्ट्रांग करे और उनको तो अभी ज्यादातर ये है, तो हमारे लिए चाल है, तो इसलिए हमें पता नहीं कि क्या होगा। तो एकेडमीज जैसे ही स्कूल नॉर्मल ऑपरेशनल हो जाए, वैसे एकेडमीज को शुरू कर देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकेडमी जुड़े हुए हैं, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनका जो है लाइवलीहुड खतरे में। तो अगर वो एकेडमी ऑपरेशनल नहीं होगा तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे अपने दाल रोटी चलाएंगे? तो ये बहुत दिक्कत है हमारे अभी स्पोर्ट्स में। तो अभी कोई ऐसा कोई स्टिमुलस पैकेज स्पोर्ट्स के लिए तो आएगा नहीं कि कि गवर्नमेंट या कोई संस्था दे दे कि क्या हम आपको फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि आपको कोविड से नुकसान हुआ है। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके जो नुकसान वो उनके लिए भरपाई मिल जाएगा, क्योंकि बैंक को ऋण दे देंगे, बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स को नहीं। तो वो भी एक हमारे सिस्टमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पोर्ट्स को हमने अभी तक इंडस्ट्री का वैसा ढाल नहीं दिया है जैसे कि हम एक अदर इंडस्ट्रीज को दिया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो या आईटी हो या फाइनेंस इंडस्ट्री या कमोडिटी हो, तो वो अभी गैप है। तो इसलिए चैलेंजेस हमारे लिए। जो भी अब ये सवाल आया, जो नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल खेल रहे हैं, उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो, जो अगर खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल खेल रहा है आज के दिन में, वो अगर वो टॉप क्लब में खेल रहा है, तो अगर वो सोचो उनका जीवन फुटबॉल का लाइफ जो है 8 से 10 साल है, तो अगर वो मतलब अपने आप को मतलब एक लेवल सोचता है, तो वो इतनी उसकी सेविंग हो जाती है, वो लाइफ कर सकता है। तो उसके पास प्रोफेशनल प्लानिंग होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लान क्या होना चाहिए, कि मैं बनूं या मैं एक कंपनी चलाऊं या मैं किसी जगह नौकरी करूं। देखिए, स्पोर्ट्स को और नौकरी से
से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी जो है हमें ये नहीं सोच के आना चाहिए कि देखो उसमें अगर चैंपियन बने तो नौकरी मिलेगा। ठीक है, देखो नौकरी भी जरूरी है, क्योंकि बहुत संस्थाएं जो है इंडिया में है नौकरी देते हैं स्पोर्ट्स कोटा में, और वो मिल जाए तो अच्छी बात है। इसलिए लेकिन कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता, तो इसलिए जो स्पोर्ट्स में है उनको हमें एक्सपोजर ऐसा देना चाहिए ताकि वो एजुकेशन को ना छोड़े। ये ना देखो हम किसी खिलाड़ी को ये ना बताएं देखो पढ़ना छोड़ दो क्योंकि आप तो कार्ल लुइस बनने वाले हो या टॉप मेसी बनने वाले हो, इसलिए पढ़ाई की वो सबसे गलत सलाह होगी। देखो कभी भी किसी खिलाड़ी को ये ना बोले कि देखो मत करो, उनको पढ़ाई करने, क्योंकि देखो खिलाड़ी की का जो लाइफ होता है, जो ऐसे टॉप खिलाड़ी वो लाइफ बहुत कम होता है, क्योंकि कोई कोई इंजरी हो जाती है तो आप बहुत जल्दी को रिटायरमेंट लेना पड़ता है। तो आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी पोटेंशियल थी, क्योंकि आज के दिन देखो अगर आप पीवी सिंधु को देखें तो वो तो 200-300 करोड़ आती है। सोच सकते हो आप कि की कमी नहीं है इंडिया में। आप अगर उस लेवल पहुंचे तो आप नौकरी का क्यों सोचो, आप तो ये सोचो कि आप नौकरी कैसे दो लोगों को, अगर उस लेवल पे पहुंचो नौकरी दे सकते हो, आप बड़ी संस्थाएं चला सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। That's what we have to think. We have to think in a very, very broad sense, and that's how we need to cultivate. From school we need to cultivate that. You know that in our sportsmen. And अगर बच्चों को हम सही राह दिखा रहे हैं, सही से हम उनको ग्रूम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सब कुछ आसान, मतलब सब कुछ सही होगा। अगर हम उनको गलत राह दिखा रहे हैं कि देखो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कर देता हूँ तो बस गए, तो वो खिलाड़ी कभी अपने आप उनकी उनका लाइन ही चेंज हो जाएगा कि वो बोलेंगे देखो जो कोच बोल रहा है वो सही है, जो टीचर वो सही है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वहां पे भटक जाते हैं, और वो जब भटकता है फिर राह में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वो खिलाड़ी उस लेवल का नहीं तो हर जगह से मतलब फिस जाता है। ये हमें बहुत बहुत जरूरी है हमारे समय ये होना। देखिए गांव हो कहीं भी हो, डेवलपमेंट हो तो मतलब हर जगह जरूरी है, और वो ही करा सकता है अगर वहां पे ट्रेन कोचेस हो। जैसे कि मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैं स्कूल में था तो हमारे हम मतलब हम तो एक छोटे से आए हैं, तो वी नेवर हैड अ कोच। इट वाज सो डिफिकल्ट व्हेन आई रीच टू अ कॉलेज, देन ओनली आई कम टू नो अरे टेक्निकली हम इतने डेफिशिएंट, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि दिस इज वे टू train, this is a way to you know kind of skills, this is how you should train, and that was the most difficult. So that's why we need more coaches we need to come into the system. Every village need to have, every school need to have, and that's how we will be able to produce better players, and better, those talent players will reach to their potential. देखिए गांव से को तभी अपॉर्चुनिटी सकती है कि अगर गांव के लेवल पे कोई फुटबॉल का संस्था है, या तो कोई क्लब है या कोई ऐसा कोच है जो हर सिस्टम से वाकिफ है, जो ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है, या कोई ऐसा स्कूल पार्टिसिपेट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, या ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो एक एनवायरनमेंट है, एक वो ढांचा जरूरी है। और हमारे लाखों गांव हैं, और उसकी यही बात है कि वो ढांचा नहीं है, तो इसलिए बच्चे जो हैं वहां से बहुत होता है कि वो आगे देखो बहुत सारे हैं, जैसे आपने बिहार से स्टोरी सुनी होगी कि वहां की लड़कियां अभी इंडिया टीम में भी खेल रही हैं, बहुत गाँव से हैं, लेकिन वहाँ एनजीओ ने
रखा है फुटबॉल का डेवलपमेंट, और वो लड़कियों को एम्पावर कर रहे हैं फुटबॉल के द्वारा। एक युवा कर नाम का एनजीओ है, वो उनको बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं वर्ल्ड लेवल, वहां की लड़कियों को। तो वहां की लड़कियां अब तक 10-12 इंडिया के लिए खेल चुकी हैं, एज ग्रुप लेवल, अब सीनियर लेवल तक पहुंच रही हैं। तो गांव से आई है, लेकिन वहां पे किसी ने अपॉर्चुनिटीज किया है, तो उनमें प्रतिभा है भी, वो पहुंचे हैं और वो अपॉर्चुनिटीज मिला है उनको। ये हमारे 90% गांव में नहीं है आज के दिन, तो वो वहां तक हमें पहुंचना पड़ता, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा ढांचा है। अगर गांव तक, अगर इफ यू डोंट हैव टिल आवर विलेज एट पंचायत, द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, you know we won't be able to make, do our sports to do, and it's a that's why I'm saying, it's a hard work, it's a tremendous uh, everyone need to come together, and we have to think, you know how we can, make those changes and structure. So at the end, I'm it's more than 70 minutes now. It'll be ending now in 1 minute. Another great participation. It was a real pleasure to speak on this subject, on this topic, potential of football in India. And at the end, in the conclusion, what I have to say is that, those who follow football, those who love football, those who are passionate on football, forward, try to be part of it in whatever way possible, and encourage others to play football. And I'm saying, this, keep this in record. I know it's Facebook Live, and this will remain there. I think we will be big in football, and we will dominate it. If not 2035, 36, or 2040, we will definitely. And this is what my mission is, and we will make this happen. And what more and more people to join hands, uh, we will, make India proud, and football will be the number one sport. In terms of participation, in terms of passion, in terms of investment, everything. We will make it big, and that is what, those who are listening to me. If you need any kind of guidance, please feel free to reach to me. Where I'm, available in all social media platforms. You can reach to me, and whatever possible help if I can do for you, I'll be very happy, because you all committed to sports. Continue to remain committed, and try to see that you can, play a bigger role, and you grow in your profession, in your career, and you feel at the end, happy that, you are out of sport, and you made a difference. And that's what, at the end will be satisfactory in our life, because don't think about chairs and all. Those chairs, those positions are all temporary. It comes and goes, but what remains with you is that the work you do, the kind of change you see, the kind of influence you have on things. तो आखिर में धन्यवाद, और great interacting with you. Thank you for those questions. I know, there were many more questions. Sorry not answer all that, but I'm back again. We will interact. Thank you. Take care. God bless, and stay safe, and keep social distancing, and let's fight together to kill this virus and make India proud. Thank you. Take care.